इस चैप्टर का नाम परमानेंट magnetism. So you can first write basic properties of magnets. Basic properties of magnets. First property you can write, a magnet attracts. Magnet attracts small pieces of ferromagnetic materials. Magnet attracts small pieces of ferromagnetic materials. The ends of the magnet show. The ends of the magnet show maximum attraction. Ends of the magnet show maximum attraction. These ends where magnetic attraction is maximum. These ends where magnetic attraction is maximum are called magnetic poles. Are called magnetic poles. Next second देखो directive property. Directive property. When magnet is suspended, using a thread, it aligns itself. और reason क्या लगा align क्यों हो जाती है magnet? Because of electrostatic में dipoles align क्यों होते थे? टॉर्क एक्टिंग. तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा. और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? जब 0 डिग्री का एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड डी वेक्टर. तो इसमें भी सेम कंसेप्ट कि टॉर्क एक्ट करेगा और वो अलाइन हो जाएंगे. बट अभी वो सब हम लिखेंगे नहीं. अभी सिर्फ ये लिखेंगे that when suspended freely, magnet align itself in the direction of Earth's magnetic field. सेट भाई लाइन रिपीट कर दो शुरू से. When magnet is suspended freely, it aligns itself in the direction of Earth's magnetic field. The pole of the magnet which points towards geographic north. Pole of the magnet which points towards geographic north is called north pole. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ geographic north है वहाँ magnetic south होगा या magnetic north होगा? साउथ. मैग्नेटिक साउथ. बिकॉज जिधर geographic north pole होता है, geography के हिसाब से north pole है, वहाँ magnetic south pole होता है अर्थ का. The pole of the magnet which points towards geographic north is called north pole. And the pole towards geographic south pole is called south pole. And the pole towards geographic south is called south pole. Third property. Like poles repel and unlike poles attract each other. इसको मैं ज़्यादा elaborate नहीं कर रहा, ये आपको पहले से पता है. नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे. Like poles repel each other and unlike poles attract each other. Fourth is important. Magnetic poles always exist in pairs. Magnetic poles always exist in pairs. मतलब अगर आप मैग्नेट को ब्रेक करोगे तो डाइपोल्स ही बनते जाएंगे. लाइक अगर मेरे पास ये मैग्नेट है, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा अगर, तो इट विल अगेन फॉर्म टू पोल्स. फर्दर जितने मर्जी इसके पीस करते जाओ, इट विल ऑलवेज फॉर्म डाइपोल्स.
मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। साथ में ऐसे डायग्राम बना लो कि हमेशा पेयर्स ही बनेंगे, कि तोड़ दोगे तो भी वो रहेगी तो मैग्नेट ही। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। सर मैंने क्लास तो लेट ज्वाइन की थी सर, आपने टेस्ट का तो कुछ बोला नहीं। कौन से टेस्ट का? मतलब चैप्टर आपने जो कंप्लीट किया उसका। मैग्नेटिक इफेक्ट्स का टेस्ट हाँ जी, आपने बताया था कुछ इसके बारे में, क्लास लेट ज्वाइन की थी थोड़ी। संडे को ही होगा, संडे को ही। So you can write magnetic poles always exist in pairs. That is, even if we break the magnet, into number of parts, each part will be a magnet. Each part will be a magnet with its own north and south pole. Each part will be a magnet with its own north and south pole. Fifth is magnet induces magnetic properties in substances placed near it. In substances placed near it. So you repeat करना fifth point. Magnet induces magnetic properties in substances placed near it. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी था, रिपल्शन इज शो टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकॉज अट्रैक्शन कैन बी बिटवीन Induced. मैग्नेट एंड अ नॉन मैग्नेट आल्सो। रिपल्शन तभी होगी जब दोनों मैग्नेट्स हैं। अट्रैक्शन तो एक आयरन और मैग्नेट के बीच में भी हो सकती है ना। रिपल्शन तभी होती है जब दोनों सब्सटेंसेस मैग्नेटिक होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रिपल्शन इज शो टेस्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। कि अगर हमने ये प्रूव करना है कि दोनों सब्सटेंसेस मैग्नेटाइज्ड हैं या मैग्नेट्स हैं तो उनमें रिपल्शन ही होनी चाहिए, बिकॉज अट्रैक्शन मैग्नेट और आयरन के पीस में भी हो सकती है, मैग्नेट और कोबाल्ट में भी हो सकती है। सो रिपल्शन तभी होगी जब दोनों मैग्नेट होंगे। नेक्स्ट राइट, अब important definitions for magnetism. Important definitions for magnetism. First is magnetic field. The region around a magnet in which influence of magnet can be experienced. Region around the magnet in which influence of magnet can be experienced is called magnetic field. And magnetic field is said to be uniform if. And magnetic field is said to be uniform if it has same magnitude and direction. If it has same magnitude and direction in a given region. तो फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए फिर? तीन प्रॉपर्टीज कौन सी थी? स्ट्रेट, पैरेलल, इक्विडिस्टेंट। Thus for uniform magnetic field. Thus for uniform magnetic field, field lines are straight, parallel and equidistant. Straight, parallel and equidistant. Next is magnetic poles. क्या? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात क्या बोले थे? Field lines should be straight, parallel and equidistant. Field lines should be straight, parallel and equidistant. सेगवेज से पिछला वाला पॉइंट हैज सेम मैग्नीट्यूड के आगे क्या बोला था?
किसके आगे? It is said to be uniform if it has same magnitude. And direction at every point in the region. Next is magnetic poles. These are the regions of strong magnetic strength. These are the regions of strong magnetic strength, or the points near the two ends of the magnet, or the points near the two ends of the magnet where attractive force is maximum. Next, magnetic axis. सेकंड पॉइंट की हेडिंग क्या थी? Magnetic poles. Next is magnetic axis. The line passing through. The line passing through two poles of the magnet. Line passing through two poles of the magnet is called magnetic axis. Line passing through two poles of the magnet is called magnetic axis of the magnet. कि नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन कर दो तो दैट लाइन विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इक्वेटर. The line passing through center of the magnet and perpendicular to the magnetic axis. The line passing through center of the magnet and perpendicular to magnetic axis is called magnetic equator. Next, magnetic length. The distance between two poles of the magnet. Distance between two poles of the magnet is called magnetic length. Distance between two poles of the magnet is called magnetic length. And magnetic length is always less than geometric length. Magnetic length is always less than geometric length. ये समझ में आया पॉइंट? So एक बार पोल्स जो है वो बिल्कुल कॉर्नर्स पे नहीं होते, एज पे नहीं होते. मतलब अगर मैं मैग्नेट ड्रॉ करता हूँ ना, तो मैंने अगर एक नॉर्मल मैग्नेट ड्रॉ की, तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज ज्योमेट्रिक लेंथ, जो साइज ऑफ मैग्नेट है. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एज पे नहीं होते, थोड़ा सा अंदर होते हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दिस इज मैग्नेटिक लेंथ. तो नॉर्मली मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ की जो रेशो होती है
this is around 0.84. तो ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यादा होती है, मैग्नेटिक लेंथ कम होती है, बिकॉज पोल्स एज पे नहीं होते, एज से थोड़ा सा अंदर होते हैं. नेक्स्ट इज, एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, सर ये रेशियो ये मतलब हर मैग्नेट के लिए सेम होती है कि मैग्नेट टू मैग्नेट वेरी कर सकती है? बार मैग्नेट के लिए लिखी मैंने सिर्फ, बार मैग्नेट ही ड्रॉ की ना, बिकॉज मैग्नेट की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हो सकती हैं, हॉर्स शू मैग्नेट हो सकती है, ये बार मैग्नेट के लिए लिखा है. और ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट होती है, मतलब 0.84, या यू कैन से कि एवरेज वैल्यू निकाली होती है. नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस. कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R². इसमें चार्ज की जगह आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह μ0/4, तो μ0/4 QM dash by R², where QM and QM dash are the pole strengths, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ. अदरवाइज लॉ सेम है, उसमें तो बहुत डिटेल में लिखा था कि मीडियम चेंज करने से क्या होगा कुछ, इसमें सिंपल एक फॉर्मूला लिखना है. सो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. This law is for finding the force of interaction. This law is for finding the force of interaction between two magnetic poles. Force of interaction between two magnetic poles. If QM and QM dash denotes pole strength of the two poles separated by distance r, then force of interaction between them is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to square of distance between them. So Inversely proportional to, directly proportional to the product of pole strength, inversely proportional to square of distance between them. There is, फिर ये दोनों स्टेप लिख लो. F proportional to QM dash by R², और F is equals to μ0/4 QM dash by R². अगर QM dash की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू भी 1 मीटर है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? mu0/4. वैल्यू 10 raised to power minus 10 7. से माइनस 10 raised to power minus 7. So you can write इसके आगे लिख लो. Thus unit magnetic pole may be defined as that pole which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from identical pole, 1 meter of identical pole repels it with a force of
repels it with a force of 10 raised to power minus 7 Newton. ये पोल स्ट्रेंथ है क्या वैसे? पोल स्ट्रेंथ मतलब जैसे चार्ज को हम डिफाइन नहीं करते, बट इट बेसिकली डिटरमिन्स कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो कितनी फोर्स लगा सकता है। वैसे ही पोल स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, और डाइपोल्स जितने ज्यादा अलाइन हो जाएंगे पोल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी, बट एज सच इट्स नॉट अ क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन कर सकें कि डिफाइन पोल स्ट्रेंथ। वन पोल स्ट्रेंथ को, यूनिट पोल स्ट्रेंथ को डेफिनेशन दे दी, बट जैसे चार्ज नहीं हम कहता, एक प्रॉपर्टी है इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप कह सकते हो मैग्नेटिक मटेरियल्स की। नेक्स्ट राइट, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या थी? Two equal and opposite charges separated by a small distance. सेपरेटेड बाय फिक्स्ड डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या था? प्रोडक्ट ऑफ Either charge into a distance between them. डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब सारी जगह मैग्नेटिज्म पूरे में, जहां पे भी नेगेटिव है उसकी जगह साउथ पोल, जहां पे भी पॉजिटिव है उसकी जगह नॉर्थ पोल। So magnetic dipole is system of equal and opposite poles separated by a fixed distance. Magnetic dipole moment is the product of pole strength into distance between the two poles. Vector quantity and its direction is always from south to north pole. Exactly same, negative की जगह south pole, positive की जगह north pole, और बाकी charge की जगह pole strength. So you can write magnetic dipole and magnetic dipole moment. Magnetic dipole is a system of equal and opposite poles. Magnetic dipole is a system of equal and opposite poles separated by So equal and opposite. poles separated by a fixed distance. And magnetic dipole moment is the product of its pole strength and distance between the two poles. That is, m is equals to qm into 2l. जैसे उसमें भी हम लेंथ को 2a या 2l कुछ लिखा होगा. That is, magnetic moment is equals to qm into 2l, where qm is the pole strength. Second, it is a vector quantity and its direction is always from. It is a vector quantity and its direction is always from. South pole to north pole. And its direction is always from south pole to north pole. इसके नीचे नोट में एक पॉइंट लिखो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? Force experienced by 1 coulomb of फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय unit for strength. यूनिट पॉजिटिव की जगह नॉर्थ पोल.
मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने जहां पे भी डायरेक्शन निकालनी थी हम कहते थे प्लेस एन इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जहां पे भी डायरेक्शन निकालनी है इसे प्लेस एन इमेजिनरी नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पे उस इमेजिनरी नॉर्थ पोल पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ पोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ 1 कि QM की वैल्यू अगर 1 है so you can rate note में लिख लो इसको magnetic field intensity. Magnetic field intensity at a point is magnetic field intensity at a point is defined as force experienced by unit north pole, force experienced by unit north pole placed at that point, force experienced by unit north pole placed at that point. And mathematically मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बिकॉज अगर पोल स्ट्रेंथ फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है देयर इज फॉर पोल ऑफ स्ट्रेंथ QM magnetic field intensity at a distance r यही आएगा फॉर्मूला कूलम्स लॉ से जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था Q/r²। और अगर मैं B पॉइंट लिखूं इफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस force experienced by pole of strength QM dash at that places कितनी हो जाएगी QM dash B vector. QM dash B vector. और हम कह देंगे कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो फोर्स एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अगर साउथ पोल है तो फोर्स एक्स Opposite to the direction. ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है कि नॉर्थ है या साउथ है तो यू कैन से नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड and south pole experience force in direction opposite to field. Because उसमें relation the F is equals to QE इसमें QM dash into B. सर एक बार बैक कर दूं करता हूँ एक मिनट लास्ट में यही लिखा है नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड साउथ पोल एक्सपीरियंस फोर्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। क्या सर बस एक सीन के लिए बैक सर बस एक सीन के लिए बैक कर देना एक बार स्क्रीनशॉट लेना क्या करना है आपने थैंक यू सर नेक्स्ट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। याद है डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे की थी
हमने इसमें एक मैग्नेटिक पोल रखा, से बार मैग्नेट रख दी इसके अंदर एक, से नॉर्थ पोल या साउथ पोल। नॉर्थ पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, साउथ पे ऑपोजिट। अगर लेंथ इसकी मैं लेता हूँ 2L, तो दिस विल बी, 12 sin theta. और टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, आइदर फोर्स इनटू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस Perpendicular between so QMB into 2L sin theta, और फिर QM into 2L is magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो MB sin थीटा वेक्टर फॉर्म में M क्रॉस B। मैक्सिमम टॉर्क कब होगी, मिनिमम कब होगी, Maximum जब angle Maximum 90 और minimum जब M और B परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम। थीटा इज इक्वल टू 0 पे भी टॉर्क 0, थीटा इज इक्वल टू 180 पे भी टॉर्क 0। दोनों में फर्क क्या था, stable and unstable. स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल टू 0 इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 180 इज पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ के आए हो, तो इसके न्यूमेरिकल कम आते हैं, मतलब उसके इस पे आते ही नहीं कभी। ये बहुत अनइम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब बोर्ड भी प्रेफर करता है इस पे ज्यादा कुछ ना ही दे। इसीलिए लास्ट ईयर जब सिलेबस कट किया था तो इस चैप्टर को तो ऑलमोस्ट उन्होंने उड़ा ही दिया था बीच में से, बिकॉज इसमें सिर्फ डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म थोड़ा सा नया टॉपिक है, बाकी तो सब रिपीट ही चलता रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। सो यू कैन राइट, consider a magnetic dipole of length 2L and pole strength of each pole QM placed in. सर एक बार रिपीट कर दो, लेंथ 12 के बाद क्या बोला था? Consider a magnetic dipole of length 2L and pole strength of each pole QM placed in uniform magnetic field of intensity B. Placed in uniform magnetic field of intensity B as shown in figure. North pole experiences force QMB in direction of field. North pole experience force QMB in direction of field, and South pole experience force QMB in direction opposite to field, and South pole experience force QMB in direction opposite to the field. The system of equal and opposite forces with line of action different the system of equal and opposite forces with line of action different constitutes a couple and torque acts. The magnitude of torque is
the magnitude of torque is tau is equals to tau is equals to m cross b. Excuse me, sir. हाँ जी. So जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से आता है, वैसे QM किसकी वजह से आता है? Alignment of dipoles के कारण. Because जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा न्यूक्लियस के आसपास तो इट्स इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप. Yes, sir. तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और अपनी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी. बिकॉज उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या लिखा था? कोरिलेट करो थोड़ा सा. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आइए और टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था? किस पे सर? टॉर्क का P वेक्टर क्रॉस E. टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप. Nina sin theta. M क्रॉस B. IA क्रॉस बी. Yes, sir. तो ये IA क्रॉस बी बनाना है ये भी. तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग करंट. तो नॉर्मली जब कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं होता तो उनकी ओरिएंटेशन रैंडम होती है. मतलब इलेक्ट्रॉन जो एटम्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड है तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ जाती है. मैग्नेटाइज करने का मतलब है कि सबकी डाइपोल मूवमेंट अलाइन कर दी तो फिर वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी उसके पास. इसीलिए नॉर्मल स्टेट आयरन नॉन मैग्नेटाइज्ड होता है. मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि आपने सारे डाइपोल्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू कर दिया ताकि IA सबके लिए सेम हो जाए. और एक ही डायरेक्शन क्या थी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप. IA की डायरेक्शन सेम कब आएगी? जब सारे एटम्स का प्लेन पैरेलल हो जाएंगे. तो बेसिकली अलाइनमेंट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो पैरेलल प्लेन्स में मूव कर रहे हैं. एटॉमिक स्केल पे जाके देखोगे तो. नेक्स्ट इज बिकॉज आप दोनों चैप्टर्स को रिलेट करो ना. अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड इट्स इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा उसे? तो 0 degree with magnetic field. 0 डिग्री किस किस के बीच में? Magnetic dipole moment and एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में. yes, sir. तो सबके एरिया वेक्टर अलाइन होने शुरू हो जाएंगे. नॉर्मली जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं दे आर मूविंग इन सच अ वे कि देयर एरिया वेक्टर्स आर रैंडमली ओरिएंटेड. बिकॉज रैंडम ओरिएंटेशन क्यों होती है एब्सेंस में? बिकॉज उससे किसी भी Entropy. चीज एंट्रोपी रैंडमनेस डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी. तो नॉर्मल स्टेट में वो पोटेंशियल एनर्जी अपनी मिनिमाइज करके रखते हैं. पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो टॉर्क एक्ट करेगी तो वो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने शुरू हो जाएंगे. पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट में सिर्फ इतना फर्क होता है कि पैरामैग्नेट में वो अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती, फेरोमैग्नेट में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है कि ऑलमोस्ट सारे डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं. बिकॉज दो एनर्जी साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं. एक मैग्नेटिक एनर्जी और दूसरी थर्मल. तो पैरामैग्नेट में होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होता है लगभग तो वो अलाइनमेंट इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाती. मैग्नेटिक फील्ड बार बार कोशिश करता है कि एरिया वेक्टर्स अलाइन हो और थर्मल एजिटेशन या कोलिजन्स के कारण वो अलाइनमेंट ब्रेक होती रहती है.
पर फेरोमैग्नेट में वो अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब उसको एक्सप्लेन करना अभी 12th के लेवल पे नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज वो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन स्पिन इंटरैक्शन, कि दो नेबरिंग एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रही है। सो वो सब अभी हम 12th में नहीं पढ़ते, बट हम सिर्फ लिख सकते हैं कि स्पिन स्पिन इंटरैक्शन के कारण द डाइपोल्स अलाइन कंप्लीटली। इसके आगे लिख लो स्पेशल केसेस, special cases. If M and B are perpendicular, torque acting will be maximum. If M and B are perpendicular, torque acting will be maximum. And is given by tau is equals to MB. Second is if M and B are collinear, torque acting will be 0. Torque acting will be 0. Theta is equals to 0 corresponds to, theta is equal to 0 corresponds to position of stable equilibrium. Theta is equal to 0 corresponds to position of stable equilibrium, and theta is equals to 180 corresponds to position of unstable equilibrium. Theta is equals to 180 corresponds to position of unstable equilibrium. Next is time period of dipole oscillating in magnetic field. याद है डेरिवेशन क्या रिजल्ट आया था? टाइम पीरियड ऑफ pi by p. I by P, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 pi अंडर रूट I by MB. अब ये एक ऐसा आर्टिकल है जो सिलेबस में नहीं है और इसी पे ही क्वेश्चन आया जब भी आया पेपर में, बिकॉज इसमें वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आना चाहिए कि मैग्नेट को अगर ब्रेक करके 2 पीस कर दिए तो अगर पहले टाइम पीरियड t था तो बाद में कितना हो जाएगा। तो आपको उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का फॉर्मूला ठीक से समझ में आया होना चाहिए, तो फिर आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, बिकॉज इस पे न्यूमेरिकल आता है एमसीक्यूज में, जब भी आया मतलब इसी पे ही आया है क्वेश्चन, और ये सिलेबस में नहीं है वैसे। सो यू कैन राइट टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल ऑसिलेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। कंसिडर अ डाइपोल प्लेस्ड इन, consider a dipole placed in stable equilibrium position. Where is the heading Consider debit कर दी dipole? time period of dipole placed in magnetic field. Consider a dipole placed in stable equilibrium position in uniform magnetic field. In uniform magnetic field. If it is disturbed from its equilibrium position, if it is disturbed from its equilibrium position such that magnetic axis turns by an angle theta, such that magnetic axis turns by an angle theta, restoring torque acts, which tries to align the dipole back in the equilibrium position. Sir इस बार बीच में नेट कनेक्शन बार बार थोड़ा स्लो हो जा रहा है, एक बार आप Restoring torque acts to align the dipole back in equilibrium position. और restoring torque होगी कितनी?
अगला स्टेप क्या करें? sin theta theta. थीटा इज स्मॉल, नेक्स्ट I alpha. if I is moment of inertia and alpha is angular acceleration. Then tau is equals to I alpha, equating 1 and 2. SHM प्रूफ हो गया ये। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 by under root of theta. Theta by थीटा बाय अल्फा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक बहुत स्लो किए थे, इसलिए अब मैं फास्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ रिपीट ही कर रहे हैं वैल्यूज को। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ऑफ लेंथ एल, इसके दो पार्ट्स कर दिया, हाउ विल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी अफेक्टेड? पूरी मैग्नेट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो आधी मैग्नेट का कितना होगा? So axis of rotation दोनों के center. हाँ सेम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। so 1/4 क्या होगा? लेंथ हाफ हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है ml²/12। तो जब दो पार्ट्स कर दिए तो मास भी हाफ हो गया, लेंथ भी हाफ हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 हो जाएगा, बिकॉज मास भी हाफ हो जाएगा ना। और मैग्नेटिक मोमेंट में क्या चेंज आएगा? लेंथ हाफ हो गई तो हाफ हो जाएगी। मैग्नेट को जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे ना, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहती है। जो दो मैग्नेट्स बनेंगे उनमें पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी, वो तो सेम ही रहेगी, पर लेंथ हाफ हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो जाएगी। बट अगर आपको दिया हो कि मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस, इस केस में पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। इस केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? अगर ऐसे डिवाइड कर दूं दो पार्ट्स में तो हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, बिकॉज मास हाफ हो गया, लेंथ तो सेम ही रही। अगर मैंने ऐसे डिवाइड किया तो कि जो एक पार्ट बना उसकी लेंथ तो सेम है, मास हाफ हो गया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो गया। और मैग्नेटिक मूवमेंट हाँ वो भी हाफ हो गई, बिकॉज अब पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, लेंथ सेम रही। तो अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो पोल स्ट्रेंथ जो है हाफ हो जाएगी, बिकॉज लेंथ हाफ हो गई। ऐसे डिवाइड करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो जाएगी, बिकॉज पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, लेंथ सेम रही। इधर लेंथ हाफ कर दिया, इधर पोल स्ट्रेंथ हाफ कर दिया। और अगर मैंने 4 पीस कर दिए तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा एक पीस का? ऐसे दोनों वे में डिवाइड कर दिया। तो इससे एक पार्ट का अगर बताना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अगर मैंने 4 पार्ट्स कर दिए, 1/16 1/16 मास हो गया m/4 और लेंथ L/2, तो
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/16। मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या चेंज आया? 1/4। 1/4, क्योंकि लेंथ भी हाफ हो गई और पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो गई। तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना इस फॉर्मूला पे, वो इसी तरह के ही आते हैं कि मैग्नेट के 2 पीस कर दिए, 4 कर दिए, n कर दिए। बट बेसिकली आपको इन दोनों चीजों को बदलना पड़ता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंज आया और मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या आया। तो आपको याद रखना है, अगर हम अलोंग द लेंथ 2 पार्ट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी और लेंथ सेम रहेगी। अगर हम परपेंडिकुलर टू द लेंथ डिवाइड करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, लेंथ हाफ हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ml²/12। कल करते हैं। कल भी अभी कुछ ऐसी चीजें ही चलेंगी। एक तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रह गया -m.b, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। एनी पॉइंट नहीं करेंगे इसमें, एक्सियल इक्वेटोरियल ही करेंगे, और फिर गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म।